کہ یہ تو وار مونگرز ہیں، یہ تو نفرت کو فروغ دے رہے ہیں، یہ تو جنگ کو فروغ دے رہے ہیں، ہندوستان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا ہے، ہندوستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا ہے اور ہندوستان کے کمنٹیٹرز نے پہنچایا۔ اسی انگریزی میں انہوں نے جو گالم گلوچ ہے، انگریزی میں جو انہوں نے نفرت کا پرچار کیا۔ پوڈ کاسٹ بلاکتر سے میں ہوں شہاب، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاک بھارت کشیدگی میں میڈیا کا کردار کتنا گنونا رہا۔ میڈیا نے حقائق مسح کیے۔ کشیدگی کے دوران پاکستان اور بھارت کا میڈیا، خصوصی طور پر بھارت کی میڈیا نے ایسے بہت سارے غلطیاں کی جس کی وجہ سے بھارت کا میڈیا ایکسپوز ہو گیا۔ بھارت کے وہ تجزیہ نگار، وہ جن کو ہم انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار کہتے ہیں، چاہے وہ پلکی شرما جیسے جرنلسٹ یا ارناب گوسوامی جیسے صحافی، ان سب کا کردار کیسا رہا؟ انٹرنیشنل میڈیا نے ایک ان بائسڈ، ایک امپارشل قسم کی رپورٹنگ کی جس کی وجہ سے دنیا کو حقائق کا اندازہ ہوا۔ ہم نے اس پوری رپورٹنگ میں، اس پوری جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت کی میڈیا کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم نے امپارشل، ان بائسڈ اور تھرڈ میڈیا کو اپروچ کیا۔ ہم نے کوشش کی پاکستان کی جو بجائے ہم الجزیرہ کے اوپر، CNN کے اوپر، BBC کے اوپر، امپارشل میڈیا کے اوپر ریلائی کریں انفارمیشن کے لیے۔ ہم مس انفارمیشن سے، ڈس انفارمیشن سے اور اس فیک نیوز سے بچیں۔ ایک بار نیوی بیچ میں آ کے کراچی پورٹ پہ آگ لگا دیں، مزہ آ جائے گا۔ A coup against Asim Munir himself, Pakistan literally in disarray. اتنی بڑی جھوٹ! کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کا میڈیا ایز کمپیئر ٹو ہندوستان کا میڈیا میں چیور رہا، یا ہندوستان کی میڈیا جیسے پاکستانی میڈیا نے بھی بہت سارے گل کھلائے؟ شہاب، آپ نے مجھ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تنازع ہوا ہے، جو تصادم ہوا ہے، جو چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے، اس میں میڈیا نے جو کوریج کی ہے دونوں طرف سے، ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا نے، آپ نے مجھ سے اس کا موازنہ اور اس پر تبصرہ کرنے کو کہا ہے، جو یقیناً میں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بے لاگ تبصرے کے ویورز کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا، کانٹیکسٹ پرووائڈ کروں گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، 4تھی بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، بلکہ 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ ہندوستان کا ایک سٹیٹس ہے، ہندوستان کا ایک اورا ہے، ہندوستان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے۔ مغربی ممالک، امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک جو ہیں، وہ بھی ہندوستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں ہندوستان ایک ماڈل ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ اسی طرح برکس ممالک کے فاؤنڈنگ ممبرز میں، جو برکس کا بلاک ہے، جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں، اور جو مغربی جو بلاک ہے اس کے مقابلے میں جو ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے، یہ جو بلاک بن رہا ہے برکس کا اور بن چکا ہے، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں ہندوستان یا بھارت شامل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام میں، جو برکس کے نام میں جو آئی ہے، وہ ہندوستان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ تو ہندوستان کا ایک بہت، یعنی ایک ابھرتا ہوا ملک، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر ہونا چاہیے، ایک ایسا ملک جو یورپ کی کئی اکانومیز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، ایک ایسا ملک جس کو ایک 21ویں صدی کی ایک سپر پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو خود کو جو ایک منی سپر پاور ہے اور سپر پاور بننے جا رہا ہے، جس کا ایک امیج ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے امیج جو ہے وہ بدقسمتی سے بہت نیگیٹو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک اور مغربی میڈیا کا ایک تعصب ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے، وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، تو لہٰذا وہ پاکستان کو ایک تھریٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے مغرب کی ڈارلنگ تھا، کیونکہ اس نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جو مغرب کا جہاد تھا اس کو پاکستان نے لڑا تھا، اور اس وقت پاکستان جہادی نہیں تھا۔ اس وقت ان جہادیوں کی جو پروموشن تھی وہ مغرب کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوا اور سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، مغرب نے اینک بدل لی اور اس کو پاکستان میں خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان ان کو جہادی بھی لگنے لگا، پاکستان ان کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک بھی لگنے لگا، پاکستان میں انہیں انتہا پسندی بھی نظر آئی، پاکستان میں انہیں مختلف قسم کی خرابیاں نظر آئیں۔ ایسا ملک جہاں پر خواتین کے حقوق نہیں ہیں، جہاں پر اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، جہاں پر پریس آزاد نہیں ہے، جہاں پر جمہوریت نہیں ہے، جہاں پر فوج جو ہے وہ حکمرانی کرتی رہی ہے اور فوج سب سے طاقتور ہے۔ یقیناً پاکستان میں یہ کمزوریاں ہیں، یقیناً پاکستان میں یہ خرابیاں ہیں،
और इन खराबियों का जिम्मेदार जो अमेरिका का लाया हुआ जर्नल था, जनरल ज़ियाउल हक, और उसके कमांडर्स थे जिनको अमेरिका हीरो समझता था। हमीद गुल अमेरिका के लिए बहुत ही एक नामवर जर्नल था, और हमीद गुल को उन्होंने कई अवार्ड दिए थे, और जो दीवार बर्लिन गिरी थी उसका एक टुकड़ा भी हमीद गुल बताता था जो कि उनको भेजा गया था। तो अमेरिका के जो चहीते जर्नल थे उन्होंने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, पाकिस्तान के माशरे को फ़िरका परस्ती, पाकिस्तान के माशरे को इंतहा पसंदी, पाकिस्तान के माशरे को जिहादी कल्चर जो वहाँ पर आया वो उन्हीं जर्नलों को लाए जो कि अमेरिका के ट्रेन करदा थे, अमेरिका की तरबियत याफ्ता थे। तो यकीनन पाकिस्तान में फ़ौज का किरदार रहा है। पाकिस्तान की सियासत में 33 साल तक फ़ौज ने बराह रास्त हुकूमत की है, फिर इनडायरेक्ट हुकूमत की है। पाकिस्तान में कोई मीडिया भी आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी क्वेश्चंस हैं। तो पाकिस्तान के से ये भी तासुर कि पाकिस्तान से लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो जो कश्तियाँ डूबती हैं उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी निकलते हैं, पाकिस्तान की मईशत बदहाल है, ये भी एक तासुर है। तो हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का तासुर जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उसमें जैसे कि मैंने कहा कि एक वेस्टर्न बायस है, एक वेस्टर्न तंग नज़री है, एक वेस्टर्न तासुब है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन हिंदुस्तान को तो ये लोग प्रमोट करते रहे हैं। अब जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और हम मगरब वाले ये कहते नहीं थकते कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जबकि पाकिस्तान एक गैर जमहूरी मुल्क है जहाँ पर मीडिया आज़ाद नहीं है। अब ये जो वाक़या हुआ है, और इससे पहले भी कुछ वाक़यात हुए हैं उनका मैं बाद में जिक्र करूँगा, अभी ये जो वाक़या हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का, और ये जंग ने एक बिल्कुल हिंदुस्तान के इमेज को बिल्कुल एक उसका बिल्कुल 180 तौर पर तब्दील कर दिया है, और हिंदुस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने नेगेटिव इमेज हुआ है। हिंदुस्तान की साख को नुकसान पहुंचा है, हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है, हिंदुस्तान की मीडिया की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक पॉजिटिव लाइट में दुनिया के सामने आया है, और उसमें कोई पाकिस्तान की मीडिया का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं किया, बल्कि हालात और वाक़यात ऐसे हुए हैं इन चंद दिनों में, 2 हफ्तों में, बाज़ औक़ात 2 हफ्ते बहुत लंबा अरसा होता है जिसके दौरान बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और यही इन वाक़यात में हुआ है। 22 अप्रैल के बाद से जो कुछ हुआ उसने हिंदुस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया, जबकि पाकिस्तान की साख बेहतर हुई। अब हिंदुस्तान की साख को नुकसान पाकिस्तान ने जो कि उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी फ़ौज को, उनकी फ़िज़ाइया को, वो तो अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान की साख को सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के मीडिया ने पहुंचाया, हिंदुस्तान के तज्ज़िया निगारों ने पहुंचाया, हिंदुस्तान के सियासतदारों ने पहुंचाया, और हिंदुस्तान के कमेंटेटर्स ने पहुंचाया। देखिए, जमहूरियत की एक खुसूसियत ये है, जमहूरियत का एक वस्फ़ ये है, जमहूरियत का एक पिलर जो है वो आज़ाद मीडिया है, वो इंडिपेंडेंट मीडिया है। जमहूरियत में सेपरेशन ऑफ पावर होती है, लिबरल डेमोक्रेसी में, और उस सेपरेशन ऑफ पावर में हुकूमत है, अदलिया है, और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो तकसीम है इख्तियारात की, और इसके साथ ये तीन सतून कहे जाते हैं जमहूरियत के, लिबरल डेमोक्रेसी के। और लिबरल डेमोक्रेसी का जो चौथा सतून है वो आज़ाद प्रेस है, वो वॉच डॉग जर्नलिज्म है जो कि निगरानी करता है हुकूमत की और जो दीगर इदारे हैं, हुकूमत में शामिल तमाम इदारे हैं। ये सहाफ़त, जो आज़ाद सहाफ़त है, ये अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर, उनके फ़ैसलों पर, उनकी स्ट्रेटजी पर, उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करती है, ये पावर और अथॉरिटी को चैलेंज करती है। यही वस्फ है, यही क्वालिटी है, और पब्लिक इंटरेस्ट में जो सहाफ़त होती है उससे जमहूरियत मजबूत होती है। लिहाजा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का आगाज़ हुआ और पहलगाम के वाक़े में हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात धरे और पाकिस्तान पर फिर फ़ौजी कार्रवाई की, उस वक्त तवक्को ये की जा रही थी कि हिंदुस्तान का आज़ाद मीडिया, हिंदुस्तान की इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का मीडिया जो है, अपनी हुकूमत पर क्रिटिकल, उसकी कारकर्दगी पर, उसके फ़ैसलों पर, उसकी स्ट्रेटजीज़ पर, उसकी पॉलिसियों पर निगाह रखेगा। लिहाजा जब हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाक़े के बाद बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम के वाक़े का इल्ज़ाम आयद किया, तो ये तवक्को की जा रही थी कि हिंदुस्तान का मीडिया हिंदुस्तान की हुकूमत के इस फैसले को
क्वेश्चन करेगा, इस फैसले पर सवाल उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान के मीडिया ने, बल्कि वो मीडिया ऐसा लगा कि जैसे वो हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो नेशनलिस्ट है, हिंदू नेशनलिस्ट है, मजहबी तौर पर वो इंतहा पसंद है। उस पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान में लिबरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान में दीगर आवाज़ों को दबाना चाहती है। इस हुकूमत पर वो तनकीद करेंगे, उनके इस फैसले पर तनकीद करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे, ये सवाल उठाएंगे कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कैसे वो जो टेररिस्ट थे वो पहलगाम पहुंचे सैकड़ों मील का फासला तय करके, और फिर वो कहाँ गायब हो गए। कुछ आवाज़ें उठी, क्रिटिकल आवाज़ें उठी हिंदुस्तान की हुकूमत के इस फैसले के हवाले से। लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसके बाद हिंदुस्तानी मीडिया पर वार हिस्टेरिया जो है उसमें वो मुब्तला हो गया। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया को कोई तवाज़ुन या कोई मुकाबला तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया बहुत बड़ा मीडिया है और हिंदुस्तान में कई बाहर के मीडिया कंपनी जो हैं उनके भी पार्टनरशिप्स हैं हिंदुस्तान में, और बहुत वहाँ पे डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा यानी स्पेक्ट्रम उसका वसी है, और पाकिस्तान का मीडिया उसके मुकाबले में छोटा है। दूसरा जो फ़र्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया के दरमियान है वो ये है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर उर्दू ज़बान में है, बल्कि अक्सरियत 99% जो है वो उर्दू ज़बान में है, और उनके जो ऑडियंस हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं या वो लोग हैं जो उर्दू ज़बान समझते हैं। जबकि उसके मुकाबले में हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान की सोसाइटी में अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो बहुत आम है, और हिंदुस्तान का सारा मीडिया हम जब देखते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में बात करते हैं, वो अंग्रेज़ी उनकी मेन ज़बान है। लिहाजा जो आलमी मीडिया है, जो आलमी जो कमेंटेटर्स हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, जो हिंदुस्तान को मॉनिटर करते हैं, जो हिंदुस्तान को देख रहे हैं, वो हिंदुस्तानी मीडिया को देखते हैं और उसकी ज़बान समझते हैं कि वो अंग्रेज़ी में अपनी नशरियात जो हैं वो कम्युनिकेशन की ज़बान उनकी अंग्रेज़ी है। अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब ये तसादुम शुरू हुआ, ये लड़ाई शुरू हुई 22 अप्रैल के बाद, और फिर मई में हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो उसमें लोगों को ये तवक्को थी, वो लोग जो हिंदुस्तान को एक जमहूरियत समझते हैं और हिंदुस्तान को अपना एक बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं वहाँ की जमहूरियत को, उनका ये ख्याल था कि जिस तरह जमहूरियत में मीडिया एक वॉच डॉग का किरदार अदा करता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हिंदुस्तान के मीडिया भी किसी हद तक तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हिंदुस्तान के मीडिया का जो सीन है वो मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। वहाँ के एंकर्स, वहाँ के कमेंटेटर्स, वहाँ के रिपोर्टर्स, वहाँ के तजिया निगार, वहाँ के तबसरा निगार, वो सारे चीख चिल्ला रहे थे, वो शोर मचा रहे थे, उनकी ज़बानें शोले उगल रही थी, उनकी आंखें अंगारे बन चुके थे, उनके चेहरों पर गुस्सा था, उनके चेहरों पर जज्बात थे, और वो यूँ लग रहा था जैसे वो स्क्रीनें फाड़ देंगे, जैसे वो माइक्रोफोन फाड़ देंगे। वो वॉर मॉन्गर्स में तब्दील हो गए, वो प्रोपेगेंडिस्ट में तब्दील हो गए, वो झूठ फैलाने की फैक्ट्रियाँ बन गए। उन्होंने बजाय इसके कि इस सूरत हाल के हवाले से लोगों को अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, फेयर, बैलेंस्ड, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये मीडिया वाले अंग्रेज़ी ज़बान में दुनिया को, वो तो ये अपनी तरफ से तो वो हिंदुस्तान के अवाम की जहन साजी कर रहे थे, अपनी तरफ से तो वो बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार, उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे, और हिंदुस्तान के लोगों में जो है वो उनको उभार रहे थे कि वो जंग में एक जंगी जुनून में मुब्तला हो जाएं, और वो मोदी सरकार जो कर रही है उसको बगैर क्वेश्चन किए उनकी इस जंग की सपोर्ट करें। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां पे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है और हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स को पूरी दुनिया देख रही है, तो जब दुनिया ने ये देखा कि ये तो वॉर मॉन्गर्स हैं, ये तो नफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये तो जंग को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, यानी उन्होंने पिंडी पर भी कब्ज़ा करवा दिया, उन्होंने लाहौर पर भी कब्ज़ा करवा दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि BLA ने, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कोयटा पर कब्जा कर लिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कर दिया। वो ऐसी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश कर रहे थे जिनको कोई जवाज़ नहीं था, जिनका कोई बुनियाद नहीं थी, जो सरासर झूठ थी, गलत खबरें थी। तो ये बात तो छुपी नहीं रहती।
तो इससे हिंदुस्तान के मीडिया की वजह से लोगों ने, बैनुल-अक़वामी बरादरी ने हिंदुस्तान की जो बातें हिंदुस्तान से बाहर आ रही थी उन पर उन्होंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया और हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके साथ साथ हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो सेंसरशिप नाफिज की, उस सेंसरशिप के नतीजे में हिंदुस्तान में वो चंद आवाज़ें, जैसे कि आपने देखा द हिंदू एक क्रेडिबल सोर्स है, न्यूज़पेपर है, उनकी वेबसाइट क्रेडिबल है, उन्होंने जब राफेल जहाज़ों के गिराने की खबर अपनी उस पर लगाई तो उन्होंने फिर उसको बाद में हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने इसको कंफर्म नहीं किया। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया जो है वो सेंसरशिप का शिकार है, वहाँ पर आज़ाद आवाज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा आ सकता है, लेकिन कोई आज़ाद आवाज़, कोई आज़ाद खबर वहाँ पे नहीं आ सकती। देखिए शाहब, जब आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तो 12 मई है, 12 मई कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया से ये खबर आपको कहीं से भी नहीं आई कि हिंदुस्तान के तैयारे गिरे या हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। ये अब एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मगरबी ज़राए इसको कई क्रेडिबल सोर्सेज के हवाले से शाया कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में राफेल जहाज़ गिरे। जिस मुल्क फ्रांस ने ये राफेल तैयारे बनाए, वहाँ की इंटेलिजेंस ने इस बात को कंफर्म किया, अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस बात को कंफर्म किया। दुनिया में बेशुमार वेबसाइट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिफेंस में के शोबों में, जो फौजी मामलात में, जो जंगों में स्पेशलाइज करते हैं। इंटरनेट भरा हुआ है उससे। दुनिया में थिंक टैंक्स हैं, दुनिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के तैयारों को पाकिस्तानी जहाज़ों ने F-17 और J-10 तैयारों ने, जो चीन के बनाए हुए हैं, उन्होंने इन तैयारों को गिराया है और हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। अगर कोई मीडिया इस बात पर बात नहीं कर रहा तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। हिंदुस्तान के एयर चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे और हिंदुस्तान के मीडिया ने उनकी बात को तस्लीम किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखिए गैर मुल्की मीडिया, गैर मुल्की प्लेटफॉर्म, गैर मुल्की क्रेडिबल थिंक टैंक्स, गैर मुल्की एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के तैयारे पाकिस्तान की फ़ौज ने, फ़िज़ाइया ने मार गिराए हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो फतह मिसाइल है उसने हिंदुस्तान की एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने ये बात नहीं की। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया। इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ पर जो बड़े सीजनड पॉलिटिशियन, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, शशि तैमूर, जो कि कांग्रेस के एक पॉलिटिशियन हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं और उनकी पूरी दुनिया में बड़ा एहतराम किया जाता है, लेकिन इस मामले में उन्होंने जो है, इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन ने भी बीजेपी की ज़बान बोली। कांग्रेस का होते हुए उन्होंने बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था, वार प्रोपेगेंडा था, उसी को सपोर्ट किया। वही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, वही हिंदुस्तान, यानी एक तरफा ट्रैफिक चलाई, जिसके नतीजे में लोगों ने कहा ओहो ये शशि तैमूर ये कह रहा है, ओहो ये इंडिया टुडे ये कह रहा है, ओहो ये इंडिया की ये मीडिया, एक जो जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जिसकी हम बड़ी तारीफ़ें कहते हैं, उसका मीडिया का ये हाल है, वहाँ पर सेंसरशिप का ये हाल है। तो इससे हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की साख को नुकसान हुआ, और इंडिपेंडेंट ज़राए से लोगों ने जो है गैर मुल्की जो सोर्सेज हैं उन्होंने मालूमात ले ली कि हिंदुस्तान का क्या नुकसान हुआ है। इस हिंदुस्तान के मुकाबले में अगरचे पाकिस्तान के मीडिया को कोई बैनुल-अक़वामी रसाई हासिल नहीं, हिंदुस्तान का साथ इसराइल ने दिया और किसी ने नहीं दिया। अब इसराइल की इस वक्त की जो हुकूमत है, इसराइल की इस वक्त की जो पॉलिसियां हैं, उन पर पूरी दुनिया जो है तनकीद करती है। इसराइल जिसके साथ होता है, जिसके साथ खड़ा हो जाए, अमेरिका के साथ वो उसको अपना हलीफ करें, कहता है देखें अमेरिका का क्या हाल हुआ है। तो जो एक ऐसा मुल्क जो कि पूरी दुनिया में एक आइसोलेट है, जिसको पूरी दुनिया तनकीद और नफरत की निगाह से देखती रही है, सिर्फ इसराइल ने हिंदुस्तान का साथ दिया और डिप्लोमेटिक लेवल पर हिंदुस्तान का साथ और किसी मुल्क ने नहीं दिया। इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग हुई, इससे पहले
हिंदुस्तान के हवाले से कनाडा की हुकूमत ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तान ने वहाँ की कनाडा की सरजमीन पर जो है हिंदुस्तानी कनेडियन नेशनल्स को जो कि सिख थे उनको उन्होंने कत्ल किया और उसके साथ मज़ीद कई एक की लाइफ पर उन्होंने अटेम्प्ट की। कनाडा ने कहा कि हिंदुस्तान उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दी करवा रहा है। अब कोई कनाडा ऐसा मुल्क तो नहीं है ना, कनाडा की क्रेडिबिलिटी है, कनाडा की खुफिया एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी है, कनाडा की पुलिस की क्रेडिबिलिटी है, कनाडा की सियासतदानों और वहाँ के मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, और वो हिंदुस्तान के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। लिहाजा लोगों ने कनाडा की बात सुनी, हिंदुस्तान की बात पर यकीन नहीं किया। तो एक ये हुआ कनाडा में। फिर हिंदुस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा कि उसने अमेरिका में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, उसने बरतानिया में सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की। कार्रवाइयों का मतलब उनको कत्ल करने की कोशिश की। बरतानवी मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने ये रिपोर्ट शाया की कि हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कई लोगों का कत्ल करवाया। तो ये जो पिछले चंद सालों में हिंदुस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर ये खबरें आई और ये हुकूमतों ने और क्रेडिबल हुकूमतों ने ये कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी की इस किस्म की कार्रवाइयाँ दूसरे मुल्कों में करता है, तो उससे भी हिंदुस्तान के इमेज को और उसकी साख को नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान की मीडिया ने तनकीद नहीं की, हिंदुस्तान के मीडिया ने अपनी हुकूमत पर इस हवाले से जो है उनकी ग्रिलिंग नहीं की। तो ये सारे अवामिल ने मिलकर हिंदुस्तान की जो बैनुल-अक़वामी साख है उसको नुकसान पहुंचाया। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान, जिसका इमेज एक दिवालिया मुल्क का, जिसका इमेज एक ऐसा मुल्क जो कि माशी तौर पर जो है कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि इंतहा पसंदी है, जहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं और ख़वातीन के हुकूक महफूज नहीं, और जहाँ पर जमहूरियत नहीं है, और जहाँ पर फ़ौज की मदाखलत है, और जो जहाँ पर वहाँ पर हिंदुस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान तो एक बिल्कुल निकम्मा और नाअहल मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित किया, वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के पॉलिटिशियन ने, कि वो हिंदुस्तान की तरह बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेसलेस और झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाते, नफ़रत नहीं फैलाते, जो है तकसीम नहीं करते। उन्होंने अपने आप को ज़्यादा मैच्योर साबित किया। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अपनी महारत साबित की, अपनी एबिलिटी साबित की, और ये साबित किया कि पाकिस्तान कोई इतना गया गुजरा मुल्क भी नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान किस कदर गहरा आपस में मुश्तरका जो है कोऑर्डिनेशन है। पाकिस्तान और तुर्की जो है वो किस कदर एक दूसरे के करीब हैं, और चीन की टेक्नोलॉजी, चीन का जो एडवांसमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के पायलट्स ने, पाकिस्तान की प्रोफेशनल्स ने किस महारत से इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ तैयारे नहीं थे, ये सिर्फ मिसाइल नहीं थे, ये पूरा एक इकोसिस्टम था, जिस इकोसिस्टम में इंटेलिजेंस भी थी, जिस इकोसिस्टम में कंप्यूटर्स का और एआई का इस्तेमाल भी था, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी था, और एक कोऑर्डिनेटेड, एक कम्प्रिहेंसिव सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान ने चीनी तैयारों को, चीनी मिसाइल को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के बहुत उन मिसाइलों को, उन जहाज़ों को गिरा दिया जिनको फ्रांस ये कहता है और वो मार्केट कर रहा है कि वो दुनिया का बेहतरीन तैयारा है, राफेल तैयारा, जिसको कोई मात नहीं दे सकता। और जब राफेल तैयारे पहली मर्तबा टेस्ट में आए तो वो नाकाम हो गए। इसका चीन को बहुत फ़ायदा हुआ, चीन की डिफेंस उसको इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब तक मगरिब की मोनोपोली थी, या रूस जो था वो दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत आगे था। मगरिबी जो ममालिक हैं वो तो ये सोच ही नहीं सकते, ये साम्राज्य वो तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया उनके बस जो कुछ उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वही हैं। चीन तो एक उसकी क्वालिटी पे वो एतराज़ करते हैं, चीनी चीज़ों को वो कहते हैं कि वो इतनी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये पहला मौका है कि जो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी है उसका भी टेस्ट हुआ, और चीन की टेक्नोलॉजी से भी दुनिया वाकिफ हुई। अब देखिए, अमेरिका का जो सबसे सुपर तैयारा है F-35 तैयारा है, जिसको वो स्टेल्थ तैयारा कहते हैं, 5th जनरेशन का, चीन जो है उससे भी आगे जा चुका है। चीन 6th जनरेशन के तैयारे के ट्रायल कर रहा है। और ये जो हमने जो चीन का जो J-10 तैयारा जिसने ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ, और जो J-17 तैयारे पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए,
इनको चीन रिटायर कर रहा है, इनको अब वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब बल्कि अब चीन के J-20 तैयारे जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, वो इस वक्त फिजाओं में हैं। तो चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिहाज से मगरिब को पीछे छोड़ चुका है, अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, और अब वो 6th जनरेशन के जो हैं तैयारे जो हैं वो बना रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एरोस्पेस इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में, एविएशन में चीन ने साबित कर दिया है कि वो मगरिब से कहीं आगे है। एक और चीज़ वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह चुके हैं शहाब कि एक ज़माने में अमेरिका जो था शिप बिल्डिंग में वो दुनिया में सबसे लीडिंग मुल्क था, लेकिन अब उनकी शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री बहुत पीछे जा चुकी है। सिर्फ चंद मकामात पर बहरी जहाज़ बन रहे हैं, उनके वो जंगी बहरी बेड़े तो दुनिया में हैं, लेकिन बहरी सनत में, बहरी जहाज़ों की सनत में अमेरिका बहुत पीछे रह चुका है, और इसका एहसास डोनाल्ड ट्रंप को है। बहरी जहाज़ों, शिप बिल्डिंग में और वार शिप बनाने में चीन इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। चीन के सिर्फ एक जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है एक बंदरगाह पे, वो पूरी दुनिया से, अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे है, और वो जदीद तरीन लड़ाका बहरी जहाज़ बना रहे हैं, जदीद तरीन आबदोज़ें बना रहे हैं, और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप देख लें बरतानिया जो एक ज़माने में अपनी बहरिया की वजह से, अपनी नेवीज़ की वजह से उसने अपनी सल्तनत कायम की, सल्तनत बरतानिया जो है वो कायम हुई बरतानिया की नेवी, बरतानिया की बहरिया की वजह से, और सैकड़ों सालों तक बरतानिया ने दुनिया के समंदरों पर और दुनिया के बर्रे-ए-आज़मों पर राज किया, और एक ऐसी सल्तनत बनाई जहां पर सूरज गुरूब नहीं होता था। आज उस बरतानिया के सिर्फ 8 बहरी जहाज़ जो हैं वो समंदरों में ऑपरेशनल हैं। वो इस कदर सुकड़ चुका है, इस कदर सिमट चुका है, और यही हाल सारी यूरोपीय यूनियन के ममालिक का है, यही हाल अमेरिका का है, जबकि उसके मुकाबले में नेवी के शोबे में, बहरिया के शोबे में जो है चीन जो है वो सबको पीछे छोड़ चुका है। तो चीन की जिस तरह उसने टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान को फ़ज़ाइया के शोबे में दी हैं, फ़ज़ाई उसमें दी हैं, वही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की नेवी को भी मॉडर्नाइज करने में। तो इससे दुनिया को अब ये पता चला है, इस जंग के नतीजे में जो चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान एक लावारिस मुल्क नहीं है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहुत देरपा और गहरा आपस में स्ट्रेटेजिक ताउन है, जो माशी तौर पे स्फीयर को भी कवर करता है, जो स्ट्रेटेजिक उसको भी कवर करता है, दिफा को भी कवर करता है, और साथ में ये कि ना ये सिर्फ अमेरिका की, वो चीन की सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पाकिस्तान के जो टैलेंट है, पाकिस्तान के लोगों की जो महारत है, यहाँ के प्रोफेशनल्स की, वो भी सामने आई है। तो अगरचे मीडिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला इस लिहाज से नहीं कर पाया कि हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा है और पाकिस्तान की मीडिया की रीच नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादातर उर्दू ज़बान में, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो और हिंदुस्तान का सारा मीडिया जो है, उनकी तकरीबन 99% मीडिया जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। तो उसका वो बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन उसी अंग्रेज़ी बोलने ने उनको नुकसान पहुँचाया है। उसी अंग्रेज़ी में उन्होंने जो गालम गलोच की, अंग्रेज़ी में जो उन्होंने नफरत का प्रचार किया, अंग्रेजी में उन्होंने जो चीखे और चिंगाड़े, अंग्रेजी में किसी, आपने मगरबी मीडिया के किसी एंकर को, किसी चैनल को इस किस्म का काम करते देखा है? कोई मगरबी चैनल, कोई बड़ी से बड़ी जंग भी हो जाए, वो इस तरह से चीखते नहीं हैं, वो इस तरह से शोर नहीं बचाते, वो बड़े काम अंदाज में और बड़े इम्प्रेसिव तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। BBC जहां मैं काम कर चुका हूं, वहां भी उसको एक वाइट प्रोपेगेंडा की मैं ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ BBC को, जहाँ पर कि वो पूरा सच नहीं बताते, लेकिन वो जो सच और मुबालगे और प्रोपेगेंडे की जो आमेजिश करते हैं वो इतना कन्विंसिंग होता है कि लोग उस पर यकीन करना शुरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान वालों ने क्या किया? इतना रा, इतना क्रूड, इतना एक बचागाना किस्म का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि सारी क्रेडिबिलिटी जो हिंदुस्तान की थी, जो हिंदुस्तान का जो इमेज बना हुआ था, वहाँ की मीडिया ने, अंग्रेज़ी बोलने वाले एंकर्स ने, अंग्रेज़ी बोलने वाले उनके जो कमेंटेटर्स हैं, उनके जो तजिया निगार हैं, उनके जो तबसरा निगार हैं, उन्होंने दुनिया को के सामने ये साबित कर दिया कि वो अनबाइस्ड नहीं हैं, वो किस कदर मुतासिब हैं, वो किस कदर तंग नज़र हैं, वो किस कदर नफ़रत का प्रचार करते हैं।
और फिर वो ऐसे झूठ उन्होंने बोले, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कई पाकिस्तानी तैयारे गिरा दिए, कई पाकिस्तानी शहरों पर कब्जा करवा दिया। और उनकी दिलेरी का तो ये आलम है, उनकी कमज़ोरी का तो ये आलम है कि हिंदुस्तान जिसके जहाज़ गिर चुके, जो अब इस्टेब्लिश हो चुका, जो फ्रांसीसी जो इस तैयारे पर वो इतना फ़ख्र करते थे, उसके बारे में भी वो आज भी इस वाक़े के गुज़रने के बाद भी सच नहीं बोल सकते। वो आज भी ये नहीं कह रहे कि उनके यहाँ कितना नुकसान हुआ, बल्कि वो एक पलकी शर्मा हैं जो फर्स्ट पोस्ट से वेंटेज प्रोग्राम करती हैं। मैं उनकी बड़ी कदर करता था, उनको बड़ा अप्रिशिएट करता था। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाली, इतनी उनमें एक काट है उनकी बात में, अब वो एक बहुत अच्छा उनमें एक जर्नलिस्टिक टच है, लेकिन अफसोस कि वो भी प्रोपेगेंडिस्ट बन गई उन बहुत सारे दीगर सहाफ़ियों की तरह, जिन्होंने कि इस मौका पर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी, अपनी सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी को जो है दाव पर लगाया और उसका उन्हें नुकसान पहुंचा। तो बस शहाब यही कहना था। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारा सबक सीखना चाहिए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी मीडिया को, और पाकिस्तान को भी सबक सीखना चाहिए कि उसको अपने मीडिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका ये जो इमेज अब बेहतर हुआ है इसको वो मज़ीद बेहतर करने की तरफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को जो है, पाकिस्तान की मीडिया को, उनको कोशिशें करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया शाहब। आज की पॉडकास्ट में इतनी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।